For almost past 2 years, since when COVID started, the students, the aspirants, you guys have gone through a lot. And I can very well understand that. Because considering a younger age, you have gone through all the lockdowns, the psychological pressure, yourself getting sick, your parents maybe getting sick. All of us have lost, some of our family members in the second wave of COVID. So all have gone through a lot, but especially being an aspirant, being a student, being comparatively younger in age, I can very well understand that this whole duration has not been easy for you. And especially considering the point that you have to keep the exam as your priority. Whatever exam you are preparing for, GATE, for example, GATE as your priority, you have to manage all the things, right? Sometimes college is opening, sometimes closing, different situations changing here and there. Obviously, this situation is not comfortable for any of us. It's a disturbing situation, especially when I think about you students. But at the same time, it gives me slight proud as well that despite all these issues, you continued your preparation. You kept giving your best every single day. This is something which I feel slightly good about as well. Now, in this video, I'm going to talk about an issue that almost every GATE aspirant is going to face in next few days. We all know about it. For last 2 weeks, I have been getting messages about GATE being postponed. Even before the admit card got released, right? But I never talked about it. I never made a video on this because I feel that will only distract you from your preparation. But now GATE admit cards are available now, and we know that GATE is going to be there on the same dates. The issue is with the instructions and the lack of clarity. So this video, I want all of you to watch till the end and understand what I am trying to share you. This video is not about that postpone the GATE and COVID cases are rising. Obviously, I will briefly touch it. But in this video, I will tell you feasible solutions. If you think that we can postpone the GATE, we want to postpone the GATE. But just in case GATE did not get postponed, and most likely it will not get postponed, what next? What is the solution in front of you? And what possible issues you might face and how you can tackle them? So I will talk about that as well. And those issues any of you can face on the exam day. So make sure to listen to me carefully till the end. It is very important for you to understand this video. Now it is very good that you have signed the petition. I think approximately 35,000 students have signed the petition. It got the attention of news media, and this has been published in almost all reputed newspapers. But will IITs consider it? What are the points that they might think about while deciding whether to postpone or not? And are we actually talking about those points? That I will tell you. Point number one, we might say cases are rising, cases are very high, but obviously it's a data known to everyone, to IITs also, that this wave is driven by mainly Omicron variant, which is not that much dangerous, very less severe symptoms, very less hospitalization, very less ICUs admission, and very less deaths, right? And if we talk about that cases are getting increased, that is why we should do it. I don't think IITs will consider it because that is not a very practical solution. I'm telling you why I'm saying it practical. Every life matters. I'm not saying that lives don't matter. Even if one life is getting affected, it matters. But that's not how IITs will think because they have to consider so many other situations and points also. They have to see because conducting an exam is work in itself. It requires infrastructure, people. So if we talk about cases being high, that might not be as pushing point for them, considering that they have to manage all sorts of things. Especially when deaths are so low, they might not consider it. Again, I am repeating once again. ये मत सोचो कि मैं ये चाह रहा हूं, मैं चाह नहीं रहा हूं, आई एम नॉट वांटिंग इट, आई एम प्रोजेक्टिंग इट कि क्या हो सकता है और क्या उस केस में हमें करना है. दैट्स व्हाट आई एम प्रोजेक्टिंग. ठीक है, तो इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ, केसेस तो ज्यादा हैं तो क्या डेथ कम है, कोई बात नहीं, करो एग्जाम. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग. आई एम टेलिंग यू व्हाट आईआईटीज माइट थिंक एंड व्हाट दे माइट डू. तो इस वजह से केसेस ज्यादा होना इज नॉट अ फैक्टर. डेथ
हॉस्पिटलाइजेशन ये सब कम है. इस वजह से आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू चेंज ऑल द सेटअप दैट दे हैव डन. एज आई टोल्ड यू, इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट्स नॉट अ वेरी पुशिंग रीजन, स्पेशली जब बाकी सब कुछ हो रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है कंट्रीज में, राइट? बाकी कंट्रीज में भी, इंडिया में भी. तो आई डोंट थिंक कि इस वजह से वो बहुत ज्यादा पुश होंगे इसको करने के लिए, राइट? बट एक इसमें ऐसा पॉइंट है जो उन्हें पुश कर सकता है इसको करने के लिए, और केवल ये उन्हें पुश करने की बात नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट पुशिंग देम, इट्स प्रैक्टिकल ऑल्सो. और वो है जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं वो बहुत अनक्लियर है, वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है. अनक्लियर इज अ स्मॉल वर्ड. द इंस्ट्रक्शंस दैट दे हैव गिवन आर एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग. और उससे क्या होगा, उससे एग्जाम सेंटर पे केओस होगा. इट विल, आई एम गारंटीइंग यू that if these instructions that they have written, they do not elaborate or modify, I can guarantee that there will be chaos on the centers. Okay? And many students, it can be any student, don't think that no, nothing will happen to me. Any student can get affected due to that chaos and due to that mismanagement. I will show you the points that they have mentioned, और उन points में क्या issues हैं, वो कैसे contradict कर रही हैं. Let me show you that. Bring your attention to point number 11. I am looking at the instructions right now, जो instruction IIT has released in admit card. Before entry to the examination center, the center officials may assess the health condition of the candidate. Now, what type of assessment is this? Is this going to be some test that they are going to conduct? Or ऐसे ही वो just देख के उन्हें कैसा लग रहा है, are they just feeling कि हाँ ये बंदा healthy है, नहीं है, उस basis पे assess करेंगे? What exactly will they assess and how will they assess? ये बहुत important हो जाएगा. I will tell you why it will get important. You might not think कि simple एक line लिखी assess करेंगे, but I will tell you why this line can get harmful. I will tell you. So for that I need to bring your attention to point number 12. If you read point number 12, as per government order, any candidate who is COVID-19 positive or has any other infectious or contagious disease, let me repeat, who is COVID-19 positive or has any other infectious or contagious disease must not come out of home, and hence entry of such candidate will be denied. COVID-19 positive, I will talk about it, whether it is fine or not, but read infectious, any other infectious disease, which is cold also, coughing also. सर्दी जुकाम इज वेरी कॉमन है, स्पेशली विंटर्स चल रहे हैं अभी, बहुत लोगों को सर्दी जुकाम कफिंग, इट्स नॉर्मल, राइट? आई पर्सनली नो मेनी पीपल हु गॉट कफिंग, कोल्ड, फीवर, दे टेस्टेड बट वो नेगेटिव थे. बट पॉइंट यहाँ पे ये है, द पॉइंट इज दे हैव नॉट ओनली रिटन कोविड-19, दे हैव रिटन एनी अदर इन्फेक्शियस डिसीज. कॉमन कोल्ड इज लार्जेस्ट, बिगेस्ट इन्फेक्शियस डिसीज इन ह्यूमंस. कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम खांसी. Now the thing is कि अगर मुझे कफिंग है, मान लो सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, आई एम कोविड नेगेटिव, तो क्या मैं घर से नहीं निकल सकता? या क्या मैं, आई कैन नॉट राइट गेट, आई विल बी डिनाइड. क्लियरली लिखा है कैपिटल में, such candidates will be denied those have any infectious disease other than COVID-19 also. I don't think it makes sense at all. It is just not right to write it. और इनको इस चीज को ये क्यों लिखा है उसका भी मुझे जो वजह फील हो रही है, आई विल टेल यू. जस्ट कीप लिसनिंग टू व्हाट आई एम टेलिंग. एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू एन ICMR डॉक्टर, आई थिंक 2 days ago. सो व्हाट ही सेड कि ओमिक्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट सबको होगा. यू कैन नॉट, इट इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. ये ऑलमोस्ट सबको होगा, 80% को शायद सिम्टम्स भी ना आए, बट ये होगा सबको. और आई कैन वेरी क्लियरली टेल यू, बिकॉज इन सेकेंड वेव आई गॉट कोविड पॉजिटिव विद सिम्टम्स, नॉट वेरी मेजर सिम्टम्स, बट loss of taste, smell, or coughing, ये सब. तो I was very much careful. I never roamed around without mask. Whenever I used to go outside, I was always in my car. Still, Delta variant में वो मुझे हो गया था, जो कि अब और ज़्यादा इन्फेक्शियस है. तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, this is said by the ICMR doctor that almost everyone, whatever you do, everyone will get infected. Everyone. अभी नहीं तो 15 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद सबको होगा. सिम्टम आए ना आए वो बात की बात है. This is said by ICMR doctor himself. तो
जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैं अब उस पे आता हूं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव है वो भी आ ही नहीं सकता, ही इज डिनाइड। अब यू टेल मी, इफ this is so infectious that even after taking precautions, I can very clearly say it, क्योंकि second wave का I have my own experience, बिना घर से बाहर गए मुझे second wave में कोविड हो गया, और जब भी मैं गया I was with all the precautions। तो अभी it is even more contagious। तो बहुत चांसेस हैं कि बंदा घर में ही बैठा है, he is just in his home itself, but फिर भी वो उसको हो जाए, करेक्ट? तो क्या is it right to waste his air? क्या इस बेसिस पे उसको डिनाई कर देना एंट्री, इज इट राइट? इट इज नॉट इवन इन हिज हैंड्स। तो इसमें व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू? वो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, समहाउ ही गॉट इन्फेक्टेड, तो क्या वो गेट नहीं देगा? तो ये बहुत गलत स्टेप मैं इसको बोलूँगा। और इसके सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है इसके सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्यूशन नहीं है। आई विल टॉक अबाउट दैट कि वो कैसे आईआईटीज इसको शायद सॉल्व कर पाए, और एटलीस्ट आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। बट प्लीज नोट कि इस पॉइंट नंबर 12 में दोनों पॉइंट्स है वो सही नहीं है, कि आइदर यू आर कोविड-19 पॉजिटिव, फिर भी आपको हम देने ही नहीं देंगे, यू आर डिनाइड, यू विल बी डिनाइड। और सेकंड, इफ यू हैव एनी अदर इन्फेक्शियस डिसीज, चाहे आपको खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, खांसी जुकाम भी इन्फेक्शियस है, तो भी हम आपको गेट में एंट्री ही मना कर देंगे। दिस इज जस्ट नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट नंबर 12 की मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूं। एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स, इफ एनी, who have temperature higher than 99.4 Fahrenheit, listen to me carefully, or cough or running nose, will be taken into isolation area for examination. ये line, it gives an idea कि okay, there is some isolation area for examination, maybe a separate room, or maybe in the same different rooms they have some partitions, isolation partitions, okay, which seems like a good step. But this whole line is fully contradicting with the previous point and the next point. I will tell you how. Asymptomatic candidates, if any, who have fever, means temperature higher than 99.4 Fahrenheit, or cough or running nose, tell me what are the symptoms of COVID? Most common symptoms: fever, cough, runny nose. These are the symptoms of COVID. और क्या सिम्टम यू कैन चेक? सामने अब उसकी कमर में दर्द है, कमर दर्द, लोअर बैक पेन इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कोविड। विल यू चेक? हाउ विल यू चेक वेदर ही इज हैविंग पेन इन हिज कमर और नॉट? सो ऑब्वियसली द वे इन विच यू कैन चेक द सिम्टम्स आर कफ, फीवर, यही सब चीजें। अब ये लाइन कह रही है एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स, जिनको कफ है या फीवर है। ये कैसी बात हुई? एसिम्प्टोमेटिक है मतलब उसको है ही नहीं है सब। This line absolutely is not making any sense, correct? और ये कॉन्ट्रैडिक्ट कर रही है इससे पहले वाली चीज को। क्यों? क्योंकि अगर आपको कफ और कोल्ड है, लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू हैव कफ, कोल्ड, कफ बेसिकली, कफ मीन्स व्हाट? कॉमन कोल्ड एक तरीके से, विच इज इन्फेक्शियस। पॉइंट नंबर 1 में दे सेड इन्फेक्शियस कोई भी डिसीज हो, कफिंग कॉमन कोल्ड इज अ डिसीज, ठीक है, वो उतना डेंजरस नहीं है, इट इज वेरी कॉमन, दैट्स वाई इसका नाम कॉमन कोल्ड है, बट इट्स अ टाइप ऑफ कोल्ड ओनली, और इट इज कम्युनिकेबल, इट कैन स्प्रेड, इट इज कंटेजियस ओनली। तो यहां पे दे आर सेइंग कि जिसको कफ है और रनी नोज है उसको आइसोलेशन में ले जाएंगे, एंड ही विल राइट एग्जाम इन आइसोलेशन। पॉइंट नंबर 1 में दे आर सेइंग एनी इन्फेक्शियस डिसीज इज नॉट अलाउड। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? और इवन इसी पॉइंट में कॉन्ट्रडिक्शन है वेयर दे आर सेइंग कि एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स, एंड देन दे आर टेलिंग द सिम्टम्स कि एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स जिनको कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो क्या सिम्टम है फिर इसका? सो आई डोंट नो, इट मेक्स नो सेंस। बट इस पॉइंट में एक जो सही चीज है वो ये है कि दे हैव मेंशन्ड आइसोलेशन एरिया, सो इट इज अ होप कि एटलीस्ट दे हैव टेकन अ स्टेप टू आइसोलेट, और उस तरीके से दे कैन इंश्योर कि हाँ एग्जाम दे पाए वो लोग। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 13, ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव कोविड सिम्टम्स। What does that mean? He must not have COVID symptoms. Suppose he has COVID symptoms, means suppose he got fever. Again, winters चल रहे हैं, क्योंकि सेंटर का ऐसा इशू है कि someone who is maybe living in city A, he might have to go to city B, very far. क्यों?
क्योंकि when he filled the form, he was in college, he filled the form and sent it there. But now he's back at his home क्योंकि college बंद हो गए हैं. And now he has to go and travel that much of a distance. Obviously, it is possible in winters when you travel, it is possible to catch a cold, to cough, to get a fever. तो यहाँ पे इससे ऊपर के जो पॉइंट है उनके इश्यूज तो मेंटेन है, वो बरकरार है इश्यूज कि भाई ऐसे फीवर हो गया, ऐसे सिम्टम आ गए तो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ऑलरेडी है क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज है ये, उस बेसिस पे वो आपको मना भी कर सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि अगर इन्फेक्शियस सिम्टम होंगे, फीवर, कॉफ, तो आपको आइसोलेशन में भेजेंगे. बट उसी पॉइंट में वो भी कह रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए हो आप, एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स विल बी टेकन टू आइसोलेशन. फुल कॉन्ट्रडिक्शन है. और 13 पॉइंट में on the exam day candidate must not have covid symptoms. और क्या होगा इसके नेक्स्ट वो नहीं, नो क्लियर इंस्ट्रक्शन. सपोज ही हैज, व्हाट नेक्स्ट, कुछ नहीं बोला है. क्यों, वो मैं आपको अब बताता हूँ. मैं जो समझ पाया हूँ दैट आई एम टेलिंग यू. अब आप पॉइंट नंबर 11 पढ़ो. रीड पॉइंट नंबर 11. बिफोर एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर द सेंटर ऑफिशियल्स में असेस द हेल्थ कंडीशन ऑफ कैंडिडेट. अब ये पूरा का पूरा सेंटर ऑफिशियल पे आ चुका है. What they will do, whether they will allow or not. क्यों, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ. आइसोलेशन जो है ऑब्वियसली पहले से ही वो पार्टीशन करके रखेंगे. दे विल क्रिएट सेपरेट रूम्स और सेपरेट पार्टीशंस. हाउ डू यू नो कि कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है आइसोलेशन की? ऑब्वियसली इवन कंसिडर योर सेल्फ इन देयर प्लेस. अपने आप को आप सेंटर ऑफिशियल समझो. और अब आप मुझे बताओ कि आपको कैसे समझ में आएगा, आपका काम मैनेज करना है, यू हैव टू क्रिएट आइसोलेशन सेल्स. हाउ विल यू नो कि वहां पे कितने लोगों को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, स्पेशली जब पॉइंट नंबर 12 पूरा ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है. और सपोज आपने सोच भी लिया कि चलो जिस जिसको सिम्टम है उसको हम वापस नहीं भेजेंगे, उसको हम आइसोलेशन एग्जाम जो है वो करवाएंगे. मान लो वो भर गया, आपको यू डोंट नो कि हाउ मेनी सिस्टम्स यू हैव टू कीप देयर. व्हाट नेक्स्ट? अब जो नेक्स्ट बंदा है उसको सिम्टम अगर है, व्हाट ही विल डू? अब आप पढ़ लो पॉइंट 11. द वेयर इज दैट, द सेंटर ऑफिशियल विल असेस द हेल्थ कंडीशन. तो यहाँ पे चीजें हो जाएंगी chaotic, बिकॉज यहाँ पे देर इज, एज आई टोल्ड यू, पॉइंट नंबर 11 लीविंग द थिंग्स ऑन सेंटर ऑफिशियल, पॉइंट नंबर 12 कॉन्ट्राडिक्टिंग इटसेल्फ. खांसी जुकाम नहीं होना चाहिए, हो गया तो इन्फेक्शियस है, वो नहीं बैठने देंगे. एट द सेम टाइम इन द नेक्स्ट लाइन दे आर सेइंग जिनको कफ है उनको आइसोलेशन में दे देंगे. फुल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है. पॉइंट नंबर 12 इज नल एंड वॉइड. कोई सेंस ही नहीं है बन रहा, मतलब एटलीस्ट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. अगर मैं एकदम क्रिटिकली एनालाइज करूं उन लाइंस को, क्या पता मैं कुछ गलत समझ रहा हूं इसमें, आई डोंट नो, बट मैं बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूं. इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. पॉइंट नंबर 11 छोड़ दे रहा है काम जो सेंटर ऑफिशियल है उस पर. एंड कमिंग टू पॉइंट नंबर 13, वो बस कह रहा है कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव कोविड सिम्टम. और है तो क्या, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा है, या ऊपर के पॉइंट बोल रहे हैं विच आर ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टिंग. तो ओवरऑल ये कहानी क्या है? ओवरऑल ये कहानी ये है कि देयर इज नो क्लियर गाइडलाइन ऑन व्हाट विल हैपन दैट डे. इट विल क्रिएट केओस. इवन आफ्टर रीडिंग दीज 3 पॉइंट्स, जिसको सिम्टम है, सपोज आई एम द सेंटर ऑफिशियल एंड समवन कम्स टू मी विद द सिम्टम्स, आई एम नॉट क्लियर व्हाट टू डू. क्योंकि एक पॉइंट इज सेइंग डोंट अलाउ, एक पॉइंट इज सेइंग आइसोलेशन में भेजो, थर्ड पॉइंट इज सेइंग ही मस्ट नॉट हैव कोविड सिम्टम. I don't know. If I was the center official, it would be one of the toughest days of my life, I'm sure. There's no mention of vaccination. Vaccination की बात ही नहीं हुई है कि he should be double vaccinated, which is very strange, which should be there. और जैसा मैंने कहा कि इस पॉइंट पे चीजें इतनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं and they are so unclear that ultimately this will come down to the last day of exam. Exam day पे क्या होगा उस पे ही ये चीजें आ जाएंगी and it can affect any of us, any of you. क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले क्या सिम्टम आ गए, you can never predict, right? और उस वजह से सेंटर पे क्या केओस होगा उससे ऑब्वियसली आप अफेक्ट हो सकते हो. You can never predict. तो इसीलिए ये रियल इशू है जिसको IITs शुड एड्रेस. कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उस वजह से इफ वी विल प्रेशराइज देम, दे माइट रिजेक्ट दैट आइडिया ऑल टुगेदर. दे माइट थिंक कि अरे पढ़ाई नहीं किया इन्होंने इसीलिए ही ऐसा हल्ला मचा रहे हैं, व्हिच इज नॉट ट्रू.
तो इसीलिए केवल केसेस के बेसिस पे अगर हम बोलेंगे कि आप पोस्टपोन करो इसको, दैट इज नॉट अ वेरी पुशिंग पॉइंट एंड दे माइट रिजेक्ट इट कंसिडरिंग कि हल्ला मचा रहे स्टूडेंट, इनसिंसियर स्टूडेंट है, पढ़ाई नहीं की है. बट इफ वी टॉक अबाउट अनक्लियर गाइडलाइन, दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू आंसर. और इसके लिए आप ट्वीट कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो. जितने आईआईटीज हैं, स्पेशली आईआईटी खड़गपुर को आप ईमेल करके पूछ सकते हो. इट्स अ वैलिड कंसर्न एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, इवन एज योर टीचर. इट्स अ वैलिड कंसर्न फॉर मी कि अगर मेरा एक स्टूडेंट वहां जा रहा है और बाई चांस ही गॉट कफ, क्या उसको मना कर देंगे, क्या आइसोलेशन में भेजेंगे? आइसोलेशन में सारे अगर आइसोलेशन वाले जो सिस्टम है वो फिल हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ क्लियर नहीं है. तो दिस इज समथिंग दैट आईआईटीज, आई रिक्वेस्ट, शुड आंसर, शुड क्लैरिफाई. क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन जिसमें कि स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग और उसके मन में ये है कि यार आई डोंट नो वेदर ऑन एग्जाम डे, एग्जामिनेशन डे जाने मिलेगा कि नहीं. इट्स अ वेरी वेरी बैड, इट्स वेरी पेनफुल टू जस्ट इमेजिन दैट. इट्स जस्ट, एंड बिसाइड दिस एक और पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, एंड इट्स अ डेंजरस ट्रेंड जो मुझे बताया गया बच्चों के तरफ से. एडमिट कार्ड आने से पहले ही, 10-12 दिन पहले ही मुझे ये मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि सर कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा. आई वाज लाइक क्यों क्यों होगा कैंसिल या पोस्टपोन? क्यों सोच रहे हो इस बारे में? जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. देन दे आर टेलिंग कि सर यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो आया है, पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, विदाउट एनी एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आईआईटी. डिले एडमिट कार्ड में होना, दैट वाज अ पॉइंट, जो कि कोविड में देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट और दे वर जस्ट वेटिंग फॉर इट. बट उस वजह से जब बच्चों ने मेरा इस तरफ ध्यान दिलाया, देन आई नोटिस्ड कि 20-20, 50-50 वीडियो बन गए, गेट कैंसिल, गेट पोस्टपोन, इवन बिफोर एडमिट कार्ड केम आउट. यहाँ पे गलती कुछ एंड पे उन लोगों की भी है जो इस वीडियो, ऐसे वीडियोस बना रहे हैं गेट से, एडमिट कार्ड से पहले ही. क्यों? क्योंकि अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास हैं जो बोल रहे हैं कि सर 10 दिन 12 दिन वेस्ट हो गए, अब तो हो ही जाना चाहिए पोस्टपोन, मेरे 12 दिन से पढ़ नहीं पाया इस वजह से, 13 दिन से पढ़ नहीं पाया इस वजह से. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यंगर हैं, वो इस तरीके की चीज़ों से अफेक्ट हो सकते हैं. ऑल्दो आई विल अगेन आस्क यू कि फोकस हमेशा प्रिपरेशन पे रखो. जो हाथ में है नहीं तुम्हारे, उसके बारे में क्या कर लोगे सोच के? व्हाट विल यू डू इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इट? व्हाई वेस्ट योर माइंड स्पेस थिंकिंग अबाउट इट? जस्ट गिव योर बेस्ट. बट स्टिल कुछ बच्चों से अफेक्ट होते हैं, एंड यहाँ पे बच्चों तुम्हारी भी गलती है. यू शुड नॉट, बिना किसी क्लियर इंस्ट्रक्शन के, यू शुड नॉट मेक इट सच अ हाइप. और गलती जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए उनकी भी है कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि प्रीपोन अगर गेट हो रहा है तो एक अलग चीज है, तो इट्स अलार्मिंग. पोस्टपोन हो रहा है तो व्हाट्स द इशू? दे आर जस्ट गेटिंग एक्स्ट्रा डेज फॉर प्रिपरेशन. एंड पोस्टपोन हो भी रहा है कि नहीं, दैट वाज नॉट नोन. मैं अभी इस बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ इस पे बोला नहीं, वीडियो नहीं बनाया. इफ इट इज गेटिंग पोस्टपोन्ड बिफोर एडमिट कार्ड रिलीज, हम आइडिया लगा रहे हैं इट मे गेट पोस्टपोन्ड. आई हैव सीन एक ही इंसान उस पर 4-4 वीडियो बना रहा है, उसका हल्ला मचा रहे हैं और ज्यादा कि पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा. अरे एक नॉर्मल स्टूडेंट का माइंड अफेक्ट होता है उससे, वो डिस्ट्रैक्ट होता है उससे. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है वीडियो में, कैमरे उठा के जस्ट बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप पढ़ते रहो. बच्चा कैसे पढ़ते रहेगा? आप बोल रहे हो कि कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, आप पढ़ते रहो, उसका माइंड अफेक्ट होगा. इफ यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, देन व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टिंग सो मेनी स्टूडेंट्स जो उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो ये भी बहुत एक सही ट्रेंड नहीं लगा मुझे बहुत गलत लगा ये. बट स्टिल आई वॉज बिजी इन वर्क और उस बारे में मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाया, सो आई जस्ट थॉट कि उस बारे में मैं यहाँ बात करूँ. आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? यू मेक श्योर कि आप अफेक्ट मत हो इन सब चीज़ों से. आई नो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से, बट आप ऐसे कोई भी वीडियोस जो आप देखो जिसमें कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो बस आपको परेशान कर रहे हैं अंदर से, बिना कोई एक्शन बताए या बिना कोई
कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन के, आप ऐसे वीडियोस को मत देखो और ऐसे वीडियोस को अपने पे मत अफेक्ट होने दो, क्योंकि आई कैन टेल यू आज के डेट में ऐसे बहुत से वीडियोस बनते हैं जो व्यूज के लिए बन रहे हैं बस, जिनको माइंड में ये नहीं है कि यार स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इन सब चीज़ों से, बस व्यूज के लिए बन रहे हैं। वो एक गलत ट्रेंड है और आई जस्ट थॉट कि मैं उस बारे में बात करूं, उसको मेंशन कर देना इज अ डिफरेंट थिंग कि यार आज आना चाहिए था, इट हैज नॉट कम सो फार, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, दैट्स इट। गेट 2022 कैंसिल, गेट 2022 पोस्टपोन, एडमिट कार्ड से पहले ही, ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ये ठीक नहीं है। इन्फॉर्मेशन देना इज अ डिफरेंट थिंग, और हाइप बनाना और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट करना बच्चों को बिना किसी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के, स्पेशली गेट से एक महीने पहले, वो तो इट्स जस्ट रॉन्ग, सिंपली रॉन्ग इन माय ओपिनियन। एनीवे, नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इस सिचुएशन में। अभी कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ एडमिट कार्ड्स बीइंग रिलीज्ड एंड डेट्स नॉट चेंजिंग। सर जैसा मैंने बताया, आप ट्वीट करो, ईमेल करो, उससे दे विल गेट द इंफॉर्मेशन, आईआईटीज विल गेट द इंफॉर्मेशन कि एक्चुअल इशू जो है, ऑब्वियसली कोविड केस इज एन इशू, बट एक्चुअल इशू ये भी है कि अनक्लियर है गाइडलाइंस। इवन इफ केसेस डाउन चले जाने लग जाएंगे ना, आप समझो इस चीज को, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इवन इफ केसेस स्टार्टेड गोइंग डाउन, सपोज इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल, आई टीच फॉर गेट मैकेनिकल, गेट मैकेनिकल इज ऑन 13th of Feb, even if on 13th of Feb cases start going down, still ये guidelines will be a problem, cases और deaths might not be a problem, but ये फिर भी problem रहेगी क्योंकि unclear है guidelines। तो इस चीज को आप समझो, और you need to ensure that you push this message कि we need more clarity in guidelines to IITs via email, via Twitter, via different platforms where you can get a voice। और अभी आप, जैसा मैंने बताया, ये मेरी लाइफ का एटलीस्ट फंडा है, जिसे या तो आई विल इंश्योर दैट आई चेंज थिंग्स और आई विल जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट। आप अपने एंड पे इस चीज को करने के लिए क्या कर सकते हो? यू कैन ईमेल, ट्वीट, एक बार, दो बार, चार बार, राइट? आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे का काम है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप स्प्रेड कर सकते हो मैसेज को अपने दोस्तों में, अगेन 5 मिनट, 10 मिनट, यू हैव ऑन ऑल सोशल मीडिया handles, you have put up this message, that's the max you can do। उसके बाद चीजें आपके हाथ में नहीं है। so after that you need to make study your priority। अगर आप इसी में अपने दिन, घंटे बर्बाद कर रहे हो, गेट पोस्टपोन नहीं होता, और सपोज चीजें सही हो जाती हैं, जो इश्यूज जो मैंने अपने कंसर्न्स बताए हैं शायद वो नहीं होते हैं, शायद सेंटर पे कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, who will be at loss? You will be at loss। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं दे विल बी एट लॉस। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में जो टाइम आपको देना है वो एक डेफिनेट टाइम है। इट इज नॉट 2 days 3 days, इट इज फ्यू मिनट्स और आवर्स। वो देने के बाद यू गो बैक टू योर प्रिपरेशन मोड एंड फुल्ली फोकस ऑन गेट, ऑन योर प्रिपरेशन। मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी, डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ अननेसेसरी टू आउटसाइड एनवायरमेंट। घर में भी सबको आप बोलो कि अपना ख्याल रखो, केयरफुली रहो। दिस इज द मैक्स you can do at this point of time। The concerns that I have raised in this video are genuine, and I think I request IITs to consider them and make sure that they make the guidelines even more elaborated। And I can very well understand that it might not be an easy thing to ensure, because चीजें बहुत unpredictable है। That is why it is a possible solution to postpone the gate। क्योंकि किस सेंटर पे कितने सिस्टम है आइसोलेशन के, किसको सिम्टम है, सीवियर है, कब है, ये सेंटर ऑफिशियल नीड्स टू डिसाइड, विच इज नॉट एन इजी थिंग। इट कैन अफेक्ट समवन्स लाइफ, करियर। कई लोगों के एज पहुंच चुकी है, दे माइट नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर PSU नेक्स्ट ईयर। बहुत से ऐसी चीजें हैं विच IITs नीड टू थिंक अबाउट from the student's point of view as well। और यहाँ पे as I told you, the postponing of gate is the solution of all these chaos that will be there on the exam day। Again, make sure students कि आप इस मैसेज को और इस कंसर्न को, पॉइंट नंबर 11, 12 and 13, उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है
उसको नोटिस में लाएं और उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आपको रिक्वेस्टिंग रहना है, आप उनसे लड़ने के लिए नहीं हो, राइट? आप अपनी वॉइस बढ़ा सकते हो नंबर में, और आप अपनी वॉइस को एक सही तरीके से पहुंचा सकते हो, बट अगर आप बुरा भला बोलोगे, लड़ोगे, दिस इज नॉट द राइट वे। इससे वो कंसिडर नहीं करेंगे इन चीज़ों को। आप जेन्युइन जो इश्यूज हैं उनको रेज करो। आई नो देर आर सम इश्यूज, इवन जेन्युइन केसेस में भी एवरी ईयर गेट में होता है, जेन्युइन केसेस में भी, क्वेश्चंस के केस में भी, ऑल नो इट हैपन्स, बट ये एक अलग चीज़ है, राइट? तो यहाँ पे आई थिंक कि अगर आप अपना जो पॉइंट है उनको समझाओगे, स्पेशली जो पॉइंट 11, 12, 13 का कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर एग्जाम के दिन तो कुछ भी हो सकता है, फिर इफ आई हैव कॉफ एंड कोल्ड बट आई डोंट हैव कोविड, क्या होगा, वेदर आई विल गेट टू एंटर और नॉट? फुल कॉन्ट्रडिक्शन है। दैट इज वाई दीज थिंग्स इफ दे नोटिस, और क्या पता उन्हें पता हो, एंड दैट्स व्हाई दे हैव केप्ट पॉइंट नंबर 11 कि भाई हेल्थ ऑफिशियल विल डिसाइड, आइसोलेशन में जगह होगी तो ठीक है आ जाओ, नहीं होगी तो चले जाओ। दिस कुड बी समथिंग दैट दे हैव नॉट डायरेक्टली रिटर्न, लेकिन अगर मैं तीनों पॉइंट को कंबाइन कर दूं, दिस इज व्हाट आई एम कंक्लूडिंग, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट राइट। इसीलिए इस कंसर्न को आप, जैसा मैंने बताया, जो जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उन तक पहुंचाइए, एंड आई रिक्वेस्ट IITs, प्लीज कंसिडर दिस। पोस्टपोनिंग कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज इश्यूज, एंड इफ नॉट पोस्टपोन, प्लीज एटलीस्ट रिलैक्स सम ऑफ द कंडीशंस। क्योंकि अगर आप गेट पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर सेइंग दैट दिस कोविड इज नॉट दैट मच डेंजरस। तो अगर ये वेव उतनी डेंजरस नहीं है तो यू कैन रिलैक्स द कंडीशंस आल्सो, एंड यू कैन मेक श्योर कि किसी को मना ना किया जाए एग्जाम लिखने से। कोविड-19 पॉजिटिव के लिए भी डिफरेंट सिस्टम कैन बी मेड, एक डिफरेंट वार्ड कैन बी मेड जहां पे वो एग्जाम दे सके, एग्जाम लिख सके। सॉल्यूशन होंगे चीजों के, बट obviously we need to bring our voices together. I have already emailed to IITs and I also ask you to email, to tweet, और इस कंसर्न को रेज कीजिए। इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न। IITs, please consider this. It's a matter of life, career for so many students. Thank you.